begin with today's session. यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 3.4 के जो फॉर्मूले हैं वो देखने वाले हैं. Basically those formulae are called as factorization formulae. Factorization. Factorization formulae. So let's talk about the factorization formulae now. Okay. यहाँ पे you tell me the formula. अपने पास जो फॉर्मूला है sin of a plus b का फॉर्मूला. Do you remember what is sin of a plus b? Sin of a plus b sin a cos b plus cos a sin b. Can we just close the door, please? Yes. And what is sin of a minus b? Yeah, sin a cos b minus cos a sin b. ठीक है. Well, let me call this a plus b is equal to c. A minus b is equal to d. अगर a plus b c है और a minus b d है और अगर मैं इनको ऐड कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा? नहीं, ऐड देम. सो ऐड में एडिंग करने से क्या मिलेगा? a plus b is equal to c. a minus b is equal to d. ऐड करने से this gets cancelled. So 2a is equal to c plus d. Rather a is equal to c plus d by 2. Right? A plus b is equal to c. a minus b is equal to d. अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे. And this will give me a gets cancelled. So this is 2b is equal to c minus d or b is equal to c minus d upon 2. Is this okay? Well, ये जो दो इक्वेशंस है इनको अगर मैं ऐड कर लूँ, अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लूँगा तो क्या मिलेगा? मतलब you tell me the formula for sin of a plus b plus sin of a minus b. इससे क्या मिलेगा? sin a cos b plus cos a sin b. Yes? जी बताइए क्या आएगा? What about this? Plus sin a cos b minus cos a into sin b. यहाँ पर मैंने ऐड किया है. What will happen if I subtract sin a cos sin of a plus b minus sin of a minus b? क्या मिलेगा? sin a cos b प्लस cos a sin b और दूसरा है sin a cos b माइनस cos a sin b. इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरे ख्याल से. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइन उसका चेंज हो जाएगा. राइट ना? Isn't it? So I'll just subtract this both. इनको यहाँ पर ऐड करना है और इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. And as we know that during subtraction the signs are going to change. साइन माइनस होगा ये और ये प्लस हो जाएगा. By the way this gets cancelled और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा. So what do you get there? क्या मिल जाएगा बताइए? Yes. क्या मिल जाएगा? Therefore this is, ये फॉर्मूला याद रखने लायक है. साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी is equal to 2 sin a cos b. Okay? And sin of a plus b
माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos ए साइन 2 cos ए साइन बी। और ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा जी। इज दिस ओके? तो अगर मैं I'll have to remember this formula also. I'll put it in the box. I'll put it in the box. तो ये है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये जो ऊपर का सब्स्टिट्यूशन है, a प्लस बी के जगह पर c लिखेंगे, a माइनस बी के जगह पर d लिखेंगे, a के जगह पर c प्लस डी बाई टू लिखेंगे और b के जगह पर c माइनस डी बाई टू लिखेंगे। So when we make the substitutions, what do we get there? This will give me sin c plus sin d, sin c plus sin d is equal to 2 sin a के जगह पर है c plus d by 2 cos c minus d by 2, and what will be sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Is this clear to you all? ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, एक a और b के फॉर्म में है और दूसरा c और d के फॉर्म में है। Is that clear? ठीक है, so we'll have to remember this. ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने पड़ेंगे। यही फॉर्मूला इधर आएगा और यही फॉर्मूला आपको सी और डी फॉर्म में इसे आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? इसी प्रकार सेम वे I'll have to work it out for cos of a plus b and cos of a minus b. So I'll say here similarly. अभी आप लोग मुझे हेल्प करिएगा। Similarly, tell me the formula for cos of a plus b. Cos a cos b minus sin a sin b. What is the formula for cos of a minus b? Cos a cos b plus sin a sin b. अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड। सो एडिंग क्या आएगा? cos of a plus b प्लस cos of a minus b. अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अगर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट। अगर इसको ऐड करूंगा तो आप लोग मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि दिस गेट्स कैंसिल ना, एडिंग। सो आई विल डायरेक्टली राइट 2, करेक्ट, 2 cos a into cos b. सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं चाहूंगा कि I'll make the subtraction like this: cos of a minus b minus cos of a plus b. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b, right? And cos of a minus b is cos a cos b minus sin a sin b. देखिए, इनको अगर जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन के दौरान साइन बदलेंगे, तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। आई होप यू गेट दैट। यस, एंड व्हाट यू गेट देयर? हियर दिस गेट्स कैंसिल, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू गेट देयर? दिस विल बिकम cos of a minus b minus cos of a plus b is equal to 2 sin a sin b. तो थोड़ा सा अलग है ये फॉर्मूला एज कंपेयर टू द अदर फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। We will have to remember this. I'll put it in the box. Cos of a plus b plus cos of a minus b, and cos of a minus b, यहाँ पर माइनस भी पहले आ रहा है, याद रखिए। ठीक है? Now let me replace
ए प्लस बी के जगह पर क्या आएगा, सी। ए माइनस बी के जगह पर क्या आएगा, डी। ए के जगह पर क्या आएगा, सी प्लस डी बाई टू, और बी के जगह पर क्या आएगा, सी माइनस डी बाई टू. Well, after making all these substitutions, what do you get there? So give me cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and this is cos d minus cos c. याद रखिए cos d पहले आएगा, is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? Let me put it in the box here. I'll put in the box. I hope this is clear to you all. Right? Correct? By the way, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको और एक तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि c अगर मुझे पहले लिखना है तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज cos c माइनस cos d, मतलब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस साइन, तो ये हो जाता है -2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, या फिर उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, ये जो है साइन, ये माइनस साइन है, आप इधर अंदर भेज सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पता है ना आपको. तो इफ आई अटैच दिस माइनस साइन ओवर हियर, अगर ये माइनस साइन मैं किसी तरह से यहाँ पर भेज देता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, वो बन जाएगा साइन ऑफ माइनस c माइनस डी अपॉन टू, जो कि बन जाएगा साइन ऑफ d माइनस c बाई टू. समझ में आ गया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? माइनस साइन अंदर भेज सकते हैं थीटा के यहाँ पे, बिकॉज माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन मैंने अंदर भेज दिया. अब ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो तो ये आएगा माइनस सी प्लस डी, माइनस सी प्लस डी मतलब डी माइनस सी. अंडरस्टूड? तो यही फॉर्मूला मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ. कैसे? दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू. समझे? ऐसा भी लिख सकते हैं cos c माइनस cos d. इज दैट क्लियर? ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, cos d माइनस cos c माइनस cos d के लिए इधर माइनस लगा लो, या तो फिर ये माइनस अंदर भेज दो. तो तीनों भी फॉर्मूले सही है, करेक्ट है. इज दैट ओके? सो इट्स द सेम फॉर्मूला इन द डिफरेंट फॉर्मेट. इट्स द सेम फॉर्मूला इन द डिफरेंट फॉर्मेट. यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया है मैंने. इज दैट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस ओके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये सारे फॉर्मूले आपको दिए हैं पेज नंबर 49 पर. पेज नंबर 49. cos c माइनस cos d और cos d माइनस cos c एक ही फॉर्मूला है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले पेज नंबर 49 पर दिए हुए हैं. ठीक है, आप लोग इसको मार्क कर सकते. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम और डिफरेंस ऑफ द टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसमें बड़ा एंगल होगा वो हमेशा a होगा, याद रखिए. द बड़ा एंगल इज ऑलवेज a. Which formula I'll apply here? I'll apply 2 sin a cos b. क्या फॉर्मूला है ये? This is sin of a plus b plus sin of a minus b. वो पेज नंबर जो है वो आपके सामने रखिए, पेज नंबर 49 पर दिया है ना, वो पेज आपके सामने खुला रखिएगा जहाँ पर आपने मार्क किया है. करेक्ट? वो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले आपको रेफर करने पड़ेंगे. तो इसमें ये बड़ा एंगल है 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 इज बड़ा एंगल, जिसका मैं a बोल दूंगा, एंड दिस इज छोटा एंगल. दिस इज करेक्ट ना? तो ये if I'll use this formula, what am I going to get there? If I'll use this formula, this will give me
दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। वेल दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्या आएगा रे, 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाय 6, सही है, प्लस साइन ऑफ 4 पाई माइनस 3 पाई इज पाई बाय 6 एंड दैट्स द आंसर। दिस इज सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आ गया आंसर, करेक्ट। चलिए बताइए यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, करेक्ट, दिस इज 2 cos A इंटू cos B, आप रेफर करके बताइए, दिस इज cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, सही है, इसमें ये है A और ये है B, सही है। So if I'll use this formula, what am I going to get there? This is cos of 75 degree plus 35 degree plus cos of 75 degree minus 35 degree, सही है। Now that is equal to cos of, क्या आएगा, 7 plus 300 110 plus cos of 40 degree, that's the answer. Is that okay? लेकिन घबराइए मत, इतना सिंपल नहीं पूछेंगे वो, they'll not ask you such a simple question. So we'll go for the next one. यहाँ पर सारे के सारे हमें प्रूव करने हैं। We'll go with the first one. बताइए कैसे करेंगे। Yeah, prove the following. Prove the following. So first of all, I'll start with the LHS. Of course, LHS is equal to sin 2x plus sin 2y, whole thing divided by sin 2x minus sin 2y. Well, I'll use the formula sin c plus sin d, और यहाँ पर होगा sin c minus sin d. So tell me the formula for sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. And what is sin c minus sin d? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. If I'll apply this formula over here, what am I going to get there? This will become 2 sin 2x plus 2y upon 2 into cos 2x minus 2y upon 2, सही है, whole thing divided by, yes, 2 cos 2x plus 2y upon 2 into sin 2x minus 2y upon 2, सही है। Well, this 2 gets cancelled. Now ये वाले फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, बट व्हाट आई विल से इज इफ आई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ से मन ही मन में कुछ कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ से 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, इज इट नॉट? सो कैन आई कैंसिल दिस 2 हियर, यहाँ से 2 कॉमन आके इसके साथ कैंसिल होगा, ये भी 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एंड सेम थिंग हियर एंड सेम थिंग हियर। कैन आई से सो? सो व्हाट रिमेन्स ओवर देयर इज upon cos of x plus y. What do you say? This is sin of x plus y upon cos of x plus y. नहीं, ये तो क्या आएगा वो? Is that going to give me tan of x plus y? Tan of x plus y divided by, अच्छा अब ये देखिए, अगर ये cos जो है वो नीचे आएगा इधर, तो ये मिला के क्या मिल जाएगा? What is this going to give me? है मतलब डिनोमिनेटर में tan आएगा ना, डिनोमिनेटर में tan आएगा ना,
तो काय के लिए मैं सीधा लिखूंगा tan of x minus y, correct, and I think that is equal to RHS. Is that okay? So that's equal to RHS. Let me say. Any doubts about that? अगला question. Second question. How's that? ये कैसे करेंगे? Yeah, let's start with LHS. Sin 6x plus sin 4x into sin 2x है क्या? नहीं, print mistake. It is minus sin 2x minus sin 2x. ठीक है, कैसे करेंगे? यस, पहले तो मैं इसको क्लब करता हूं. I'll use sin c plus sin d. What is sin c plus sin d? सब लोग बताइए. You can sing this, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. So that will be given by 2 sin of 6x plus 4x upon 2 into cos of 6x minus 4x upon 2 sin 2x. फिलहाल मैं sin 2x को वैसे ही लिखूंगा, लेकिन आगे जाने के बाद मुझे कुछ क्लिक होने वाला है. क्या होने वाला है देखते हैं. 2 sin 6x plus 4x upon 2 5x. This is 5x into cos 6x minus 4x is 2x and 2x upon 2 is x. You see, ये 2 और ये cos x और ये sin 2x, ये आपको कुछ कह रहा है. सुनाई दे रहा है? क्या कह रहा है? 2 sin x cos x. Can I say so? 2 sin x cos x. और इसमें से फिर ये 2 और cos x कॉमन आएगा. I'll take that common. तो अगर ये कॉमन लिया जाएगा, what do you get there? This is 2 cos x, ब्रैकेट के अंदर आएगा sin 5x minus sin x. Now again here I'll make use of the formula sin c minus sin d. What is the formula for sin c minus sin d? It's 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. I'll use this formula here. क्या मिलेगा बताइए? This is 2 cos x into 2 cos c plus d. देखो बड़ा एंगल c होगा, छोटा एंगल d होगा, बड़ा एंगल a होगा, छोटा एंगल b होगा. So 5x plus x upon 2 into sin 5x minus x upon 2. Is this okay? अब देखिए ये 2 into 2 4 is cos x, 5x plus x 6x upon 2 3x, so this is cos of 3x. You see, अच्छा 5x minus x 4x, 4x upon 2 2x, this is sin 2x. इसको मैंने कहीं देखा है, ये जो है ना, I have seen this somewhere. I think that's RHS ना. देखिए ना, sin 2x cos 3x, correct? So I'll simply say that is equal to RHS. Any doubts about that? अगला question. Let's go for the next question. How do we go for this next one? LHS is equal to
sin x minus sin 3x plus sin 5x minus sin 7x, whole thing divided by cos x minus cos 3x minus cos 5x plus cos 7x is equal to, बताइए मुझे cot 2x चाहिए, मुझे सिर्फ cot 2x चाहिए बताइए। देखिए, now this is important step that I'm going to perform. I'll club this and this together so that I'll write this as sin 5x plus sin x. इसको मैंने क्लब किया है एक ब्रैकेट के अंदर, I have clubbed this together like this, ठीक है, and माइनस साइन कॉमन लिया जाएगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पर आएगा ये माइनस और ये भी माइनस, so I'll write this as sin 7x plus sin x, okay, divided by, नीचे भी वैसे ही कुछ किया जाएगा, क्या करेंगे, आई थिंक cos c माइनस cos d करेंगे, मतलब cos x माइनस cos 5x, I'll club this together, ठीक है, एंड यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया जाएगा आई थिंक, तो cos 3x जो माइनस है वो प्लस बनेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस cos 7x। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? एक एक करके मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा। दिस इज साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, cos d माइनस cos c, बड़ा है c, छोटा है d, cos d minus c, did you understand that? So what is the formula for sin c plus sin d? Yeah, sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, और cos d minus cos c क्या है जी? 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। फॉर्मूला पेज आपके सामने रखा है आपने, उसको देख के आप बता, तो यहाँ पर अप्लाई करिए, बताइए क्या होगा। 2 sin, बताइए 5x plus x upon 2 into cos 5x minus x upon 2, okay, minus cos sin c plus sin d again 2 sin 7x plus x upon 2 into cos 7x minus x upon 2। Is this clear? Cos d minus cos c क्या आएगा? 2 cos, बताइए 5x plus x upon 2 into, एक मिनट, साइन आएगा ना, ये साइन, और यहाँ पर भी साइन है, साइन 5x माइनस x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स क्या आएगा, ये साइन 7x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x अपॉन 2। इज दैट क्लियर? नो, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए। लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बिकम 2 टाइम्स क्या आएगा, साइन ऑफ 5x प्लस x 6x, 6x अपॉन 2 इज 3x, सही है, cos of 2x
minus 2 times sine 4x into cos of 3x. ओ क्या साइन 5x आएगा ना रे? एक मिनट, 7x, एक मिनट, ये cos ऑफ 3x है ना रे? साइन 7x एंड साइन 3x है यहाँ पे, समझे क्या? देखिए 5x हो गया, x हो गया, 7x और ये 3x है, सो दिस हैज टू बी 3x ना, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया यहाँ पे, दैट हैज टू बी 3x। अगर ये 3x है तो यहाँ पर भी 3x होगा और यहाँ पर भी 3x होगा ना, सॉरी यहाँ पे x ही होगा, हाँ, दिस इज 3x एंड दिस इज 3x, तो ये चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, क्या आएगा? 7x प्लस 3x ना, 7x प्लस 3x, और यहाँ पर भी 7x माइनस 3x, तो ये 7x प्लस 3x क्या होगा? अपॉन टू 5x, एंड दिस इज 7x माइनस 3x, 4x अपॉन 2 इज 2x, सही है? ओके, चलिए नीचे क्या आएगा? ये 2 टाइम्स साइन 5x प्लस x 6x, दिस इज 3x, 2x, दिस इज cos of 2x, माइनस 2 टाइम्स साइन, एक मिनट, ये साइन होना चाहिए, फिर ये आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 2x, करेक्ट? न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आया क्या? आ रहा है, 2 आएगा कॉमन और cos 2x आएगा, है ना? I'll take that common, 2 cos 2x, सही है? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा? 2 sin 2x, सही है? कॉमन ले लेते हैं इसको, क्या मिलेगा? दिस इज 2 cos 2x, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? sin 3x माइनस sin 5x, सही है? डिनोमिनेटर में क्या आएगा कॉमन? 2 sin of 2x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? sin 3x माइनस sin 5x। RHS मुझे क्या चाहिए? RHS में what am I supposed to get there in the RHS? तो I think we are one step away from the answer। क्या करेंगे? 2 कैंसल, 2x कैंसिल होता है क्या? अच्छा, फिर ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा, करेक्ट? सो व्हाट यू गेट देयर? cos 2x upon sin 2x is cot 2x and that is equal to, is this clear? Well, I'll mark this as a star problem, should I? हाँ है तो ये स्टार। अगला क्वेश्चन, I'll go for the next question। कैसे करेंगे इसको? How do we solve this? LHS sin 18 degree cos 39 degree plus sin 6 degree into cos 15 degree, how's that? क्या करेंगे? Well, I'll multiply this by 2
और ब्रैकेट के बाहर उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से। इज दैट ओके? करेक्ट। अच्छा, बाय द वे आई कॉल दिस बड़ा एंगल एज ए एंड छोटा एंगल एज बी, बड़ा एंगल एज ए एंड छोटा एंगल एज बी। तो ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस देन? इज दिस 2 cos a into sin b? और ये भी वैसे ही है 2 cos a sin b। व्हाट इज 2 cos a sin b? इट इज एक्चुअली साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। चेक करिए, इज इट? तो लिख लीजिए क्या आएगा ये, दैट इज इक्वल टू हाफ, इसके अंदर क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस b 39 प्लस 18 माइनस साइन ऑफ 39 माइनस 18 प्लस यहाँ पर भी वैसे ही करना है, साइन ऑफ 15 प्लस 6 माइनस साइन ऑफ 15 माइनस 6। सो दैट इज इक्वल टू हाफ, क्या आएगा बताइए, साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस साइन ऑफ 21 डिग्री प्लस साइन ऑफ 21 डिग्री माइनस साइन ऑफ 9 डिग्री। कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस एंड प्लस साइन ऑफ 21 डिग्री कैंसिल, तो क्या बचेगा वहां पे बताइए, हाफ ऑफ साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस साइन ऑफ 9 डिग्री। सही है? ओके, अब दिस इज I'll make use of sin c plus sin d, sorry sin c minus sin d. What will be sin c minus sin d? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. अप्लाई करिए, this is half into 2 cos of 57 plus 9 upon 2 into sin 57 minus 9 upon 2. Now that is equal to 2 gets cancelled. So this is cos of 57 plus 9 66 upon 2 33 degree into sin 57 में से 9 गया 48 upon 2 24. Is it the same thing? Cos 33 sin 24? Yes, that is equal to RHS. Any doubts about that? Is that clear? This is okay? अगला क्वेश्चन, LHS cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, इस टाइप का हमने किया था शायद, cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री, बोलिए कैसे करेंगे? यस, ये भी स्टार है ना शायद, स्टार या इसको हाफ स्टार बोल सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय समथिंग, यू टेल मी व्हाट। I'll multiply this by 2 sine of 20 degree and I'll divide this by 2 sine of 20 degree. You see, इसको मैं 2 sin 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, sin 20, तो cos से cos भी कर सकते हैं। ओके 16 नहीं, और कुछ करते हैं, रुकिए,
मैं क्लब करूंगा 40 और 20 को ऐसे, and I'll multiply and divide it by 2. I'll say this is 2 cos A cos B. What will be 2 cos A cos B? This is cos of A plus B plus cos of A minus B. I think so. You see? चलिए अप्लाई करते हैं, तो क्या मिल जाएगा ये? This will become 1 upon 2 into cos of 40 plus 20 plus cos of 40 minus 20. And by the way, what is this cos of 60 degree? वो तो half है, into cos 80 as it is. Is this okay? No, that will give me what? Half. बोलिए क्या आएगा? This is cos 60 plus cos 20 into actually 1 by 4 आएगा यहाँ पे, half into half, right ना? Isn't it? आगे into cos of 80 degree. सही है? Any doubt so far? अब ये अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो क्या बचेगा? दिस इज 1 अपॉन 4. बताइए, cos 60 is half cos of 80 degree plus this is cos 80 into cos 20. ठीक है, और इसे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. I'll use cos A, sorry, 2 cos A cos B. Once again this formula क्या आएगा बताइए? अब मैं यहां से क्या करूंगा? ये वाला हाफ बाहर निकालेंगे और ये वाला हाफ भी बाहर निकाल देंगे, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 8 ब्रैकेट के अंदर आएगा cos 80 डिग्री प्लस 2 cos A cos B. So this is cos of A plus B, 80 plus 20 plus cos of 80 minus 20. समझे क्या? So what do you get there? This will become 1 upon 8. Come on, tell me. Cos 80 plus cos of 100 degree plus cos of 60 degree. अब देखिए, ये तो हाफ आएगा, इन दोनों में कुछ कनेक्शन है. इसे मैं लिखूंगा cos of 180 minus 80. Okay, and this cos 80 as it is. क्या आएगा बताइए? What is cos of 180 minus theta? Cos of 180 minus theta, sign positive, so cos is negative, x-axis, so cos remains cos, so this is cos theta. सही है, minus cos theta, तो ये क्या आएगा? minus cos 80 degree. हो गया अपना काम. This is cos 80 degree, this is half. Are you understanding what I'm doing here? This gets cancelled and the answer is 1 upon 16, क्योंकि ये तो 0 है, and that is equal to RHS. Is this clear to you all? Star. That's a star. अगला question, the last question of this exercise. अरे ये तो जुड़वा लग रहा है ना, लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन वैसा नहीं है. लग रहा है कि वैसा ही है, लेकिन वैसा नहीं है, because this is not a star problem. नहीं, this is also star मैंने दिया है ना, ये भी तो स्टार है. चलिए शुरू करते हैं. कैसे करना है? LHS is equal to sin 20 degree, sin 40 degree, sin 60 degree, sin of 80 degree. How's that? इसमें मैं क्लब करूंगा इन दोनों को, इसमें मैं क्लब करूंगा इन दोनों को, डिवाइडेड बाय 2 sin A sin B.
So what is 2 sin A sin B? Correct. Cos of A minus B minus cos of A plus B. सही है ना? तो ये क्या बन जाएगा? So this will give me half. बताइए. Cos of A minus B. So this will be cos of 40 minus 20 minus cos of A plus B. 40 plus 20. Okay. And whole thing multiplied by. Multiply किस चीज से करना पड़ेगा? Sin 60 is root 3 by 2 and into sin 80 degree. सही है. बाकी सब सेम है. देखिए रूट थ्री ऐसे ही आता रहेगा. नाउ दिस रूट 3 by 2 into half is root 3 upon 4. अंदर क्या बचेगा? cos 20 डिग्री. और बताइए. माइनस cos 60. वेरी गुड. अब ये sin 80 डिग्री जो है वो उसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा. नहीं, भेज दीजिएगा इसको अंदर. क्या मिलेगा बताइए. सेम तरीका है. वेल, so this will become root 3 upon 4. This is sin 80 into cos 20 degree minus cos 60 is half into sin 80 degree. सही है. So once again I'll multiply this by 2 and divide it by 2 and I'll club this together so that this is 2 sin A cos B. What is the formula for 2 sin A cos B? Sin of A plus B plus sin of A minus B. Let me apply this formula. What do we get there? This will become that is equal to root 3 upon. अब देखिए ये हाफ भी बाहर आएगा और ये हाफ भी मतलब कॉमन आएगा. सो दिस विल बिकम रूट 3 अपॉन 8 है ना. ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ A प्लस बी 80 प्लस 20 प्लस साइन ऑफ A माइनस बी 80 माइनस 20 माइनस साइन 80 डिग्री. सही है. That is equal to root 3 upon 8 into this is sine of 100 degree plus sine 60 degree minus sine of 80 degree. अब आप मुझे बताइए कि sine of 100 degree को मैं कैसे लिख सकता हूँ. This sine of 100 degree I'll write it as, बोलिए. Correct. That is sine of 180 minus 80. And that is equal to sine of 180 minus theta. What will be sine of 180 minus theta? Sine of 180 minus theta. AS sine positive. ये positive आएगा and sine will remain same. It's only sine theta. That is, this is sine of 80 degree. Is this clear to you all? So how do I write this? This is root 3 upon 8 inside the bracket sine 80 degree plus sine of 60 is again root 3 by 2 minus sine 80 degree plus sine 80 degree minus sine 80 degree cancel. Root 3 into root 3, 3 upon 60, that is equal to RHS. That's a star problem. That's the end of this exercise and we stop here for maths. Is this clear to you all? Any doubts about that?